तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। Narendra Singh Suryanshi sir, Principal, Vice Principal, Coordinator, PRO, all the dignitaries, all teaching and non-teaching staff, parents, grandparents and my dear friends. On behalf of Nirmal International School, I, Prerna, welcomes you all for the 79th Independence Day celebration. I request Honorable Principal of our school, Honorable Mr. Ganesh Alput sir, for address and welcome note. Honorable Principal sir, please. Good morning. Wish you all happy Independence Day. Thank you, respected guest present on the dais, Honorable President Mrs. Vaishali Suryavanshi, the Secretary Advocate Narendra Singh Suryavanshi, Academics Director of Academics IB Singh sir, Vice Principal, Coordinator, my dear parents, reporters, my colleagues, all teachers, non-teaching staff, and my lovely student. I wish you all a very happy Independence Day, and you all are welcome here on this occasion of grand celebration, that is Independence Day. See, why we are celebrating Independence Day, all students? Because we got freedom in 1947, 15th August 1947. So this day is having a great importance in our history. For this independence, our many freedom fighters sacrifices their lives for our nation. And here I am proud to be an Indian that we are standing here
freely because of their sacrifices. So, to respect them, to respect our nation, everywhere in India, this day it is celebrated as a national festival, that is 15th August. Got it? Then a question rises in our mind. Are we free? Is our India free? Is our nation free? Yes, definitely we are free. We are living in this independent country now, where our fundamental rights are there. We God's fundamental rights, and because of those rights, we are living freely our life. We are respecting our national flag. So it is our responsibility to respect the nation, to respect all the citizens of our country. We are going for our pledge. In your pledge, that a sentence is there. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. This state a lot of meaning. All Indians are my brothers and sisters. Are we living together? Is there unity in diversity? Yes, it is there. Our today's theme of Independence Day, that is Operation Sindoor. And through that Operation Sindoor, it proved that there is a unity in diversity. Though there are a lot of religions, still when there is a question arises about the nation, at that time people are coming together for the sake of nation. So observing to them, we have to always respect our nation. This school is a small model of the society where you are taught to be united, to help each other, equality. This is taught here, and this image you have to carry in the society. When there is an incident near our house on the road, if there is an accident, are we helping to those people or are we neglecting to them? Is it my responsibility to help them? Are you helping to each other in the classes? When you are going on the ground, are you helping each other if anyone fallen down? Then are you picking that boy up? Are you healing him or her? This is our responsibility to help each other. So on this day, I will just tell you to respect the nation, go for the equality, unity. Once again, wish you happy Independence Day. Thank you. Thank you so much, sir. Your words are really praiseworthy. Now, I request head boy and head girl of our school to invite our chief guest, Mrs. Vaishali Suryavanshi Madam, and dignitaries for flag hosting.
जल तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हे Raise hand down. भारत माता के भारत माता के भारत माता के From class 10A, thank you. The sports captain, Shreya Mahalpure, is following it with a strong will of our school sports flag. उनके बाद में हमारे स्कूल के हेड बॉय एंड हेड गर्ल, the Royal House captain, हाथ में पीले रंग का झंडा, अमोद गरुड़ and house in charge Mrs. Reena Somwanshi and house captain Mr. Karun Pardeshi, all in kurta pajama. इनके पीछे आ रहे हैं लॉर्ड्स. The house in charge, that is Miss Pooja Shinkar and the house captain Aryan Thakur. अपने हाथ में हरे रंग का झंडा लहराते हुए देश की समृद्धता की ताकत हरे पोशाक में सभी लड़के आनंद और सशक्त भारत की पहचान. हमारे अतिथियों को मान वंदना देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं. शांति और समृद्धता का संदेश देते हुए बड़े ही शान से झंडे की तरफ आते हुए और आखिर में है किंग्स हाउस विद द रेड कलर फ्लैग. हाउस इंचार्ज मिस्टर राज पाटिल एंड द हाउस कैप्टन इज मास्टर मयूर पाटिल. और देखो तो इनकी ड्रेस, ऑल आर इन सोल्जर्स यूनिफॉर्म. फ्रेंड्स, सैनिकी शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह और देश प्रेम की मिसाल. Good morning, everyone. Happy Independence Day of love. Music creates a happy atmosphere. I am sure that you will also sing with us. Our friends are going to sing the song Jayustute, Jayustute. Let's welcome them. I am Dhruvi Chetan Rajput from class 6C. Thank you. Namaskar. नमस्कार. स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. विविध कलागुण आमचे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी सादर करणारच आहे. आता वेळ आहे देशभक्तीपर गीतांची. आमचे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आपल्यासमोर भक्तिमय गीत सादर करणार आहे. मला खात्री आहे आपल्याला ही पेशकश नक्कीच आवडेल. मी अदिती दीपक पाटील, इयत्ता 8वी ब मधून. धन्यवाद.
79th Independence Day. Now, a speech in English. The topic is Patriotism and Nation's Pride. And the speaker is Ms. Khushi Manoj Mahajan from class 10th B. Khushi, please. Chief guest and the President of Nirmal Foundation, Mrs. Vaishali Suryavanshi Madam, Secretary Advocate Mr. Narendra Singh Suryavanshi Sir, Vice President Mrs. Kamaltai Patil Madam, Principal Mr. Ganesh Rajput Sir, Academic Head Mr. I.B. Singh Sir, Coordinator Mrs. Nehal Patil Madam, all teaching and non-teaching staff, parents, grandparents and my dear friends, wish you all Happy Independence Day. Friends, I am Khushi Manoj Mahajan from class 10th B. My topic is Patriotism and Nation's Pride. Dear spectators, today as we celebrate our nation's independence, let us reflect on the values that makes our country great. Patriotism and national pride are the two such values that have been driving force behind our nation's progress. If we think of a state of patriotism and national pride in our country, we are faced with a complex, multifaceted reality. We also witness challenges that threaten the very fabric of our nation's unity. Divisive ideologies, narrow identities, and the sets of serving interests can dissolve the values of patriotism and national pride. Patriotism is not just waving flags and singing anthems. It is about working towards the betterment of our nation, promoting unity and upholding the values of equality, justice and compassion. As citizens, we have a crucial role to play in shaping the future of our nation. We must engage in critical thinking, question unjust system and work towards creating a more equitable society. However, it's crucial for today's citizens to cultivate an inclusive patriotism that respects diversity, encourages critical thinking, and embraces a sense of shared responsibilities towards progressive nation. Why government offices are always uncleaned? Why people spit on the walls? We people inculcate the habit of reaching office late. Is this the step towards patriotism or nation's pride? No, not at all. My dear friends, keeping love of national flag in our heart and its pride on our head makes some difference. We need not to go on borders. For that, our soldiers are there. But we can help them by realizing our responsibilities towards progressive nation. My dear friends, let us encourage each individual to unite together. Let us ignite the lamp of progressive India. Let us contribute towards promoting positive values and for a better future of all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. The pure truth to us all. Khushi, your words, thoughts will definitely bring change. Thank you. I am Shravani Ranveer Rajput from class 10th A. All the best. Friends are going to present a drama before you. They are going to tell you why to celebrate national days, what is patriotism and what are our duties as being a citizen of India. Friends, always remember, we should love our country and its varied heritage. I am Ameya Amit Salunke from class 5th C. Thank you. आदरणीय प्रेक्षक नमस्कार. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी म्हणजे सर्वांना सुट्टीचा दिवस वाटतो, पण या एका दिवसामागे अनेक लोकांचे प्राणांचे बलिदान आहेत याचा आम्ही विचारच करत नाहीत. तर आज आपले विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आपल्यासमोर एक नाटक सादर करणार आहेत. ते आपल्यासमोर एक स्वातंत्र्य संग्राम घेऊन येत आहेत. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानाची यशोगाथा मांडणार आहेत. चला तर मग त्यांचे स्वागत करूया. मी जयेश दीपक सोनार, 5वी ब येथून. बच्चों, कल 15 अगस्त है. आप सभी को स्कूल में आना है फ्लैग होस्टिंग के लिए. छुट्टी, हम सब पिकनिक पर जाएंगे. बच्चों, क्यों कल छुट्टी? अरे सर, कल स्कूल में आकर क्या ही करना होता है? राष्ट्रगीत गाना होता है, झंडा वंदन करना होता है और घर पे जाना होता है. उससे अच्छा हम पिकनिक पर जाएंगे. ये बच्चों, कल 15 अगस्त के दिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल में आना और झंडा वंदन करना यही नहीं होता है. कल के दिन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बलिदानी तक दी है. आओ, मैं तुम्हें इसकी एक झलक दिखाता हूँ.
मेरी है। इस आज़ादी के लिए हमें एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आज़ादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सन 1919 जालियनवाला बाग हत्याकांड। नहीं बनाएगा, हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते तब तक हम बैसाखी नहीं मनाएंगे। अच्छा, जो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुम्हें भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! और इनकी ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने लोगों को भी मार दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला हम लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें, सिसकियां इंकलाब की गूंज बनकर उठी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भारत में से विदेशी परिंदों को निकालने के लिए अपने मंसूबे मजबूत कर दिए। 8 अप्रैल 1819 लाला लाजपत राय नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ भारी जुलूस निकाला गया। बेवकूफ इंडियंस, तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आती? स्टॉप दिस! साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! अच्छा, तो तुम नहीं मानते? आई सेड स्टॉप दिस! लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज! मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। यह आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। यह जिम्मेदारी मैं तुम सब पर सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वतन के इन मत वालों के खून में ऐसा उबल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट एंड सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स को मारा गया, चारों तरफ तहलका मच गया। दीवारों पे लिखा था कि लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिशों की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम के धमाकों की आवाज आई। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। साल 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुजरिम भगत सिंह, मुजरिम राजगुरु, मुजरिम सुखदेव ने को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। मैं दंगा हुआ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। मेरा भी तेरी तरह पत्थर दिल ना होगा। तेरी गला सुन के मेरा दिल फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर दिल नहीं, मेरा दिल एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के
जज्बे को ताकत देता है। बेटा मेरे लाल माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो बड़ी तकलीफ हुई है। सोच, तेरा पुत्र शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो घोड़ी पर नहीं, फांसी पर चढ़ने जा रहा है। तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा। तूने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या है? मैंने अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात सिखाई है, अपने देश के लिए एक बार वरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। आशीर्वाद दे माँ, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत मेरे लाल, भगत सिंह, कोच ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कोच, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तो तुम्हारी एज ही क्या है। इस एज में आदमी नए नए ड्रीम्स डिजाइन करता है और उन ड्रीम्स को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने जी बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं आप? क्या इस मिट्टी को तुम अपना ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जालियांवाले बाग की मिट्टी है, जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, ताकि ये मुझे मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूदों की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आज़ादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इसे आज़ादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी है कौमों की, मुझे पता है मेरी ये कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। कल देखो भगत सिंह, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। बस एक बार तुम हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख के दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 9 साल का था, तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हो गए थे, और जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तब तो मैं सिर्फ 7 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कह सकते हो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी ना मरकर, वतन की है उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। भगत सिंह, तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, और इसे हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931, समय 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दे दी गई। उनके इस बलिदान के बाद देश के हर एक आदमी के मन में आजादी की उमंग हिल्लोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
कलागुण आमचे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी सादर करीतच आहे. आणि आता वेळ आहे मराठी भाषणाची. विषय आहे गुरुपौर्णिमा क मधून. सौ वैशाली सूर्यवंशी मॅडम, संस्थेचे संचालक ॲडव्होकेट नरेंद्र सिंग सूर्यवंशी सर, प्राचार्य श्री गणेश राजपूत सर, गुणवत्ता प्रमुख अधिकारी श्री IB सिंग सर, समन्वयक सौ स्नेहल पाटील मॅडम, सर्व शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी, सर्व पालक, आजी आजोबा व माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, प्रथमतः आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजचा माझा विषय आहे गुरुपौर्णिमा आणि आजची पिढी. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आई वडील, आजी आजोबा, शिक्षक तसेच कळत न कळत का असेना ज्यांच्याकडून आपण काही चांगल्या गोष्टी शिकतो ते आपले गुरु. गुरु ही संकल्पना ब्रह्मांड व्याप्त आहे, पण आपल्याला कणभर जरी समजली तरी खूप झालं. प्रथम नमन माता पिता गुरूंना, तदनंतर देवाला. देवाच्या आधी गुरूंना स्थान देण्यात आले आहे. म्हणूनच म्हणतात ना, जो आवडे गुरुला तोची आवडे देवाला. असे का हो? कारण गुरु म्हणजे ज्ञान देणारा, पण त्यांचे काम एवढ्यावरच थांबत नाहीत. गुरु म्हणजे अज्ञानाच्या अंधारात एक दिवा. ते आपल्याला गोष्ट सांगत नाहीत, त्या कशा समजून घ्यायच्या हे शिकवतात. ते उत्तर देत नाहीत, पण प्रश्न विचारायला शिकवतात. आपलं आयुष्य गोंधळतं, विस्कटतं, तेव्हा आपल्याला दिशा दाखविणारे गुरुच असतात. आताचं युग बदललं आहे, ज्ञानाचं स्वरूपही बदललं आहे. एक काळ होता जेव्हा विद्यार्थी गुरुकुलात राहत, गुरूंचे सानिध्य मिळविण्यासाठी जंगल तोडत असत. पण आता तसं नाही. इंटरनेटवर ज्ञान सहज उपलब्ध आहे आणि फक्त माहिती मिळणेच म्हणजे शहाणपण नाही. आजची तरुण पिढी भरकटली आहे, कारण पर्याय खूप आहेत पण मार्गदर्शक खूप कमी. तुमच्यातला सर्वोत्तम गुण शोधणारा व्यक्ती आहेच कुठे? इंटरनेटवर किंवा ऑनलाईन क्लासेसमध्ये सर्व मिळेल म्हणून वर्गात लक्ष द्यायचं नाही आणि वर्गातील वातावरण खराब करायचं. अहो, पण आजच्या पिढीला कळतेच कुठे की गुरु फक्त शिकविण्याचंच काम करत नाहीत, तर ते एका बलाढ्य व्यक्तिमत्वाचा पाया रचत आहेत. भारताच्या प्रगतीसाठी हातभार लावणारी पिढी ते घडवित आहेत. गुरु कधी आई वडिलांच्या रूपात भेटतो, तर कधी शिक्षकाच्या स्वरूपात, तर कधी अपयशाच्या धक्क्यातून. आजकालच्या तरुण पिढीच्या आयुष्यात दिशाहीनतेची जी कारणे आहेत, त्यातील मुख्य यशाचा दबाव, अपयशाची भीती, करिअरची चढाओढ, स्वतःची हरवलेली ओळख, या कात्रीत अडकलेल्या मनाला आधाराची गरज असते आणि तो आधार देतो गुरु. गुरूंचा हात फक्त पाठीवरच पडत नाही, तो भान मानही मिळवून देतो. तू हरवला आहेस पण तू हरलेला नाहीस हे सांगणाराही गुरुच असतो. गुरु कुठे आहे शोधत बसण्यापेक्षा आपण आधी शिष्य आहोत का हे तपासायला हवे. आपल्या आत शिकण्याची इच्छा आहे का? चूक कबूल करण्याची नम्रता आहे का? प्रश्न विचारण्याचे धाडस आहे का? यांचं उत्तर हो असेल तर गुरु कोणत्याही रूपात प्रकट होईल. गरज असते ती फक्त शिष्यत्व जपण्याची. एवढंच सांगेन मी, प्रिया धनंजय पाटील, इयत्ता 10वी क मधून. आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. कुमारी प्रिया पाटील, आपले विचार सर्वांना नक्कीच पटले असतील. खरोखर गुरुविना सर्वत्र अंधकारच. धन्यवाद. मी कृतिका सुनील जाधव, इयत्ता 10वी ब मधून. Dignitaries, wish you happy Independence Day. Friends, have faith in your strength and abilities and let the people see your face form. Operation Sindoor is the best example of India's Bhushan Avatar. Our friends are going to present a dance. They are giving a message. India has a superpower to destroy terrorism. Their song is Ye Jag Kashmir Hai. I am Tanaya Amol Jadhav from class 5D. Thank you. उपस्थित सभी मान्यवरों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, पहलगाम का वो मंजर दर्दनाक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वह हर एक औरत के सिंदूर का जवाब था। पाकिस्तान ने हिंदू मुस्लिम में भेद बताकर आतंकवाद फैलाया था, लेकिन सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह यानी कि एक हिंदू और एक मुस्लिम नारी ने यह भेद खत्म कर दिखाया है। हमारे साथी छात्र छात्राएं यह ऐतिहासिक क्षण आपके सामने दोहराने आ रहे हैं। गाने के बोल है ये जो कश्मीर है। मैं गुंजन तुकाराम पाटिल, कक्षा 6 क से। धन्यवाद।
तुझे हम नहीं मानेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, चिरा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जहाँ तो भाग भाग बच सके तो बच गया। ज़लज़ला है दूर जोर पर चला है, किस्मत पर जो लड़ा है कांग्रेस का खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचत रंग पहलगाम के पैसारट में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। और अब खोलेंदे जेड़ा होवे आदू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर 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 सिंदूर। जीना मरना यही आन बान है, स्वाभिमान भरपूर सिंदूर। समर्पित सिंदूर। रग रग में लहू उबाला बहे, कण कण में दहती ज्वाला बहे। हेलेगा आस्था से जो हमारी, होगा चकनाचूर सिंदूर 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 सिंदूर। माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है, स्वाभिमान भरपूर सिंदूर सिंदूर सिंदूर। जाना मैं
आप सभी को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ विश्व का अधिक विस्तृत संविधान भारत माना जाता है। संविधान में भारत के नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत धर्म, सभ्यता और पारंपरिक विविधता का देश है। मैं यह मानती हूँ कि यह एक ऐसी बात है जो हमें अन्य देशों से अलग करती है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। परंतु जैसे जैसे हमारा देश उन्नति कर रहा है, वैसे वैसे हमें भ्रष्टाचार से लेकर प्रदूषण तक कई अन्य समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमने सरकार पर सवाल उठाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। हम अपनी गलतियां दूसरों पर थोपना अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें हमारा उत्तरदायित्व समझ ही नहीं आता। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी शिक्षा को उचित रूप से सही दिशा में पूर्ण करें, जो कि भविष्य में कुछ अच्छे राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो यह ध्यान रहे कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर दफ्तर पहुंचना, अपना काम पूरी लगन से करना। इतना ही नहीं, जिस दफ्तर संस्था में हम काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहना। देश के प्रति समर्पित रहने का मतलब अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करना। वह भी तो देश के प्रति उत्तरदायित्व ही कहलाता है। क्यों हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं? क्यों कूड़ा कूड़ेदान में नहीं बल्कि यहाँ वहाँ फेंकते हैं? एकजुट होकर एक दूसरे के साथ ही तो लड़ते हैं। क्यों ना हम एकजुट होकर भ्रष्टाचार, बाल मजदूरी और अन्य कई अत्याचारों पर आवाज उठाएं? क्यों ना हम स्वच्छ और सुंदर देश का प्रण लें? अगर कोई देश विकसनशील है तो यह सब कुछ उस देश के लोगों पर निर्भर करता है। हमें अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हमें सभी नियमों, अधिनियमों और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। हमारा उत्तरदायित्व देश को उन्नति की ओर ले आ सकता है। चलिए आज यह प्रण लें कि हम अपना उत्तरदायित्व पूरी लगन से निभाएंगे। मैं अंजलि प्रकाश सिंह परदेशी, कक्षा 10वीं अ से पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उत्तरदायित्व है। कुमारी अंजलि आपने बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। मैं स्नेहा ज्ञानेश्वर शेंडे, कक्षा 10वीं ब से अगले कार्यक्रम के लिए विनती करती हूँ। भूमिका नितिन राउते, कक्षा 10वीं ब से। धन्यवाद। Culture program, we will turn to the speech of the chief guest, Honorable Vaishali Suryavanshi Madam. All of us are anxious to listen her. I request Honorable President Madam, the chief guest, please come on stage and please to address our students. आजच्या या 19व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित निर्मल फाउंडेशनचे सचिव आदरणीय श्री नरेंद्रसिंगजी सूर्यवंशी, गुणवत्ता विभागाचे प्रमुख आदरणीय सिंग सर, शाळेचे प्राचार्य, उपप्राचार्य, आमच्या विद्यार्थ्यांचे पालकवर्ग, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि प्रिय विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, सर्वप्रथम या 19व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देते। खरं तर हा दिवस आपल्या सगळ्यांसाठीच अभिमानाचा, स्वाभिमानाचा आणि त्यागाचं प्रतीक असलेला हा आजचा दिवस आहे। आपण पाहतो 15 ऑगस्ट 1947 साली ही जी तारीख आहे, या दिवशी आपला भारत ब्रिटिशांच्या तावडीतून, त्यांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला आणि स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास घ्यायला सुरुवात केली आणि तो मोकळा श्वास घेऊ लागला। त्यासाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती आणि बलिदान अनेकांना द्यावं लागलं।
त्या सगळ्यांचं स्मरण व्हावं यासाठी आपण हा दिवस साजरा करत असतो. या सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांना आदरांजली देण्यासाठी आपण आजचे अतिशय उत्कृष्ट असा कार्यक्रम घेतला. अगदी प्रत्येक कार्यक्रमातून, मग तो डान्स असेल, ते गाणं असेल, नृत्य असेल किंवा स्पीचेस असतील, या सगळ्यांमधून अतिशय उत्तम असा मेसेज गेलेला आहे. ते आपण सगळ्यांनी काळजीपूर्वक जर बघितला असेल तर आपल्या लक्षात येईल. मित्रांनो, आज आपण स्वतंत्र झालो आहोत. आपल्याला मतदानाचा अधिकार आहे, आपलं स्वतःचं संविधान आहे, आपली स्वतःची ओळख आहे. पण मित्रांनो, स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ ध्वजवंदन नाही, किंवा कोणीतरी त्यांच्या स्पीचमध्ये सांगितलं की ड्रामामध्ये सांगितलं की सुट्टीचा दिवस आहे. एक विद्यार्थी म्हणतो की अरे वा सुट्टी आहे, परंतु तो आनंदाचा दिवस नाही, तो सुट्टीचा दिवस नसून केवळ ध्वजवंदन करणं नाही, तर स्वातंत्र्य म्हणजे तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आपण सर्व भारतीयांची, आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी म्हणजे हे स्वातंत्र्य आहे. आपण जबाबदार नागरिक आहोत. आपल्या सगळ्यांच्या प्रत्येक कृतीमधून जो काही गौरव देशाचा झाला पाहिजे अशी आपली कृती झाली पाहिजे, हीच आपली जबाबदारी आहे. आणि मला असं वाटतं की आजच्या दिवशी काय, दररोज दिवशी जर आपण असं वागलो, चांगलं वागलो, तर ही खरी देशभक्ती होईल असं मला वाटतं. मित्रांनो, तुम्हीच या देशाचे भविष्य आहात. शिक्षण ही सगळ्यात मोठी तुमची ताकद असणार आहे. त्यामुळे माझं आपल्या सगळ्यांना सांगणं आहे की आपण सगळ्यांनी मनापासून अभ्यास करा, सगळ्या गोष्टी करा, वाईट गोष्टीपासून दूर राहा, चांगले आचार विचार ठेवा. गणेश सरांनी त्यांच्या स्पीचमधून अतिशय छान सांगितलं. आपण बघतो कुठे अपघात जर झाला तर त्या अपघाताच्या वेळी मदतीला धावून जाणाऱ्यांची संख्या कमी असते आणि सेल्फी काढून, फोटो काढून पाठवणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे ह्या गोष्टी आपण लहानपणापासूनच जर का आचरणात घेतल्या, एकमेकाला मदत करणं ही वृत्ती जर का आपली लहानपणापासूनच आपण लावून घेतली, तर नक्कीच हा भारत समृद्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही, याहीपेक्षा समृद्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही. मित्रांनो, आपल्या देशाला उत्कृष्ट अशा डॉक्टर्सची गरज आहे, उत्कृष्ट इंजिनियर्सची गरज आहे, उत्कृष्ट अशा शास्त्रज्ञांची गरज आहे, चांगल्या व्यावसायिकांची गरज आहे, उत्कृष्ट खेळाडूंची गरज आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये चांगल्या लोकांची गरज आहे. त्यामुळे आपण अभ्यास करा आणि आपल्याला ज्याही क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं आहे त्या क्षेत्राचा आपण सगळ्यांनी लहानपणापासून अभ्यास करा. आता सोशल मीडिया तुमच्याजवळ अगदी सहज उपलब्ध आहे. फक्त त्या सोशल मीडियापासून, वाईट गोष्टींपासून लांब राहा. चांगल्या गोष्टीसाठी तुम्ही त्या सोशल मीडियाचा वापर नक्की करा. उद्याचा समृद्ध भारत घडवण्याची जबाबदारी तुमच्या सगळ्या मुलामुलींमध्ये आहे. त्यामुळे मी आज खूप काही जास्त बोलणार नाही, पण हा मेसेज आपण सगळ्यांनी सोबत घेऊन जावा आणि तो इम्प्लिमेंट करण्यासाठी घेऊन जावा, नुसतं ऐकून सोडून देण्यासाठी नाही. आजचे जेही कार्यक्रम झाले ते अतिशय सुंदर झाले, गाणं सुंदर झालं, ड्रामामधून जे काही मेसेज केला तो अतिशय सुंदर होता. म्हणजे खरोखर पहिल्यांदा आपण ड्रामा आपल्या 15 ऑगस्टला ट्राय केला आणि मी सर्व शिक्षकांचं मनापासून कौतुक करते. सगळे कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाले. सर्व विद्यार्थ्यांचं आणि शिक्षकांचं दोघांचं मी मनापासून अभिनंदन करते, त्यांचं कौतुक करते आणि पुनश्च आपल्या सगळ्यांना या स्वातंत्र्य दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Motivating and thought-provoking. Madam, we specially thank you for your continuous guidance and motivation that you always render for us. And I am Bhumika Nitin Raute from class 10th B. Thank you. Deliver some instructions. Please pay attention. After the program, all students will go in their respective classes in a proper queue. No student will go to another classes. A bag of namkeen and sweet will be given to each student. All students will enjoy the eatables in the class only with their class teachers.
All students will put the empty bags in the dustbin kept in each classroom. Remember, cleanliness is an integral part of our life. Then there will be a bell. The students of primary will move towards their vans or buses. Then the students of secondary or higher secondary will move. After another bell, the buses will start their run up one by one. The students, after getting down from their vans or buses, will directly go to their house. No student will go to their friend's house. From 18th August 2025, Monday, our school will be regular as per schedule timing. Happy Independence Day to you all. I am Soham Avinash Sarani from class 10th. Thank you and have a nice day. Opportunity to express our special thanks to those who have been here to witness this grandeur. First of all, I express my honest and sincere thanks to Honorable President Vaishali Suryavanshi Ma'am, Honorable Kamaltai Patil, the Vice President, Honorable Advocate Narendra Singh Suryavanshi Sir, the Secretary, for their valuable presence. Special thanks to Honorable Principal Sir for his motivation, guidance and support. I express my deep gratitude towards Honorable Coordinator Ma'am, Head of Academics, all teachers, drivers, conductors, ayas, sweeping section and security personnel who made us easier to perform. Friends, we sincerely thanks to our parents, grandparents, relatives and one and all who came to appreciate us. Your keen support means a lot. We express our grand gratitude to Mr. Munna God for refreshment packets, Ram Photo Studio for photographs and Mr. Sagar from Sagar DJ. Dear all, Nirmal International School is buzz of activities and skillful performances of students, where every student contribute to each event. Once again, thank you so much. With permission of dignitaries, I declare that this program is over. And I am Kairavi Bhatia from 10C. Happy Independence Day to you all.